یہ مر چکا ہے۔ ہیں؟ اکبر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب کیا ہوگا؟ یہ اس کے ہاتھ میں کاغذ کیسا ہے؟ ماموں فرقان نے یہ کہہ کر اس کے ہاتھ سے کاغذ نکالا۔ جب انہوں نے کاغذ کی تہہ کھولی تو ان کے اندر سناٹا اتر گیا۔ اکبر نے بھی کاغذ کو دیکھ لیا۔ اس کاغذ پہ جو کچھ تھا اس نے بھی اسے غور سے بھی دیکھا۔ اس کاغذ پر ایک کالے بلے کا چہرہ تھا جو منہ پھاڑے خرا رہا تھا۔ ماموں فرقان نے اس کاغذ کو زرغام کی لاش پر پھینکا اور اکبر کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب کھینچا۔ اکبر جلدی کرو، یہاں سے نکل چلو۔ بس پھر وہ اس گھر سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ گاڑی میں بیٹھے اور ہانپتے کانپتے دکان پر جا پہنچے۔ ماموں فرقان نے وہ ٹھنڈی بوتلیں منگائی اور وہ دونوں ان بوتلوں کو گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگے۔ اب تک انہوں نے ایک دوسرے سے اس موضوع پر بات نہ کی۔ اب وہ بات بھی کیا کرتے؟ جو کچھ تھا سامنے تھا، جو کچھ ہوا وہ بھی انہیں معلوم تھا کہ کیوں کر ہوا۔ ماموں اس لاش کا کیا ہوگا؟ اکبر نے رازداری سے کہا۔ کوئی محلے والا دیکھ ہی لے گا اور اس طرح اسے قبرستان پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن ماموں، یہ کیا ضروری ہے؟ کوئی پڑوس کا آدمی ضرور اس کے گھر پہنچے۔ اگر کوئی کل تک اس کے گھر میں داخل نہیں ہوا تو اس کی لاش تھڑ جائے گی۔ جانے اس کا انتقال کب ہوا ہو۔ پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیوں نہ تھانے فون کر دیں؟ ہم لوگ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ پولیس ایسے موقع کی تلاش میں رہتی ہے۔ ہم اپنا نام اور پتہ کیوں بتائیں گے؟ فرضی نام ہوگا، فرضی فون کر دیتے ہیں، بس زرغام کے گھر کا پتہ صحیح بتائیں گے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے۔ تم ایسا کرو، اپنے گھر جا کر فون کرو۔ تھانے کے ساتھ ساتھ ایدھی سینٹر والوں کو بھی فون کر دینا۔ پولیس اگر ٹھکانے پر نہ پہنچی تو ایدھی سینٹر کی ایمبولینس ضرور پہنچ جائے گی۔ پھر اکبر نے ماموں فرقان کی ہدایت کے مطابق گھر جا کر فرضی نام سے تھانے اور ایدھی سینٹر دونوں کو فون کیا۔ دوسرے دن شام کے اخباروں نے زرغام کی موت کی خبر رنگ آمیزی کے ساتھ چھاپی۔ ایسی کہانیاں گھڑی گئیں کہ ماموں فرقان اور اکبر دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ ابھی یہ خبر ٹھنڈی نہ ہوئی تھی کہ ایک اور خبر موصول ہوئی۔ یہ خبر دادا غفور سے متعلق تھی۔ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ دادا غفور نے ماموں فرقان کو فون کر کے حاضرات کے عمل کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا، فرقان، مجھے کچھ کامیابی ہوئی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ماموں نے پوچھا۔ ابھی میں یہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا یقین ہے پردے میں کچھ نہیں رہے گا، ظاہر ہو کر رہے گا۔ میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں۔ دادا بہت ہی پر امید تھے۔ اب تک کیا معلوم ہوا؟ وہ کیا دکھائی دیا وہ تو بتائیں۔ بس ایک مکان دکھائی دے رہا ہے، وہ بھی دھندلا دھندلا، دادا غفور نے بتایا، اور وہ مکان درختوں سے گھرا ہوا ہے۔ کوئی پہاڑی علاقہ معلوم ہوتا ہے۔ ماموں فرقان فوراً بولے، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اس مکان کو درختوں میں گھرا ہوا ہی دیکھا ہے، لیکن تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تب ماموں فرقان نے اس عجیب آدمی زرغام کا ذکر کیا۔ اوہ! ساری بات تفصیل سے سننے کے بعد دادا غفور افسردہ لہجے میں بولے۔ پھر دادا غفور نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی اور فون بند کر دیا، اور دوسرے دن ان کے انتقال کی خبر آ گئی۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے فلیٹ سے نکلے تھے کہ اترتے ہوئے ان کا پاؤں پھسل گیا۔ سیڑھیوں پر زیادہ روشنی نہ تھی، ان کا پاؤں کیلے کے چھلکے پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے چلے گئے۔ 70 سال سے اوپر کے تو وہ تھے۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر آخری سانس لی اور کلمہ پڑھ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ماموں فرقان کو دادا غفور کی موت کا بہت صدمہ ہوا۔ اکبر جب قبرستان سے اپنے گھر پہنچا تو شدید ذہنی کھچاؤ کا شکار تھا۔ اگرچہ اکبر کے پاس اس بات کی کوئی شہادت نہ تھی کہ دادا غفور کی موت میں سید پور کا جن ملوث ہے، لیکن جانے کیوں اس کا دل بار بار اس بات کی گواہی دیتا تھا۔ یہ سب کیا دھرا سید پور کے جن ہی کا ہے۔ اس جن نے نہ صرف اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی، بلکہ اب وہ مجرمانہ کارروائیوں پر بھی اتر آیا تھا۔ وہ اب قاتل بن چکا تھا۔ زرغام کی موت کہاں؟ اسے تو قتل کہنا چاہیے۔ یہ قتل اسی کے ہاتھوں ہوا تھا۔ وہاں تو اس نے اپنی منحوس صورت بھی چھوڑ دی تھی۔ دادا غفور کو بھی اسی نے مارا۔ وہ کیلے کا چھلکا آخری سیڑھی پر کہاں سے آیا؟
یہ سوال بار بار اس کے سر پر ہتھوڑے برساتا اور اس کا ذہن خود بخود سید پور کے جن کی طرف چلا جاتا تھا۔ اکبر مغرب کے وقت اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے کسی سے بات نہ کی، سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ جوتے اتار کر بیڈ پر دھم سے گر پڑا۔ ذہن پر بوجھتا خیالات کی یلغار تھی۔ نیلم اسے ٹوٹ کر یاد آ رہی تھی اور اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جانے کتنی دیر اسی کیفیت میں گزر گئی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے ہٹایا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بیٹے اکبر، صابرہ نے دھیرے سے کہا۔ جی امی، اکبر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اندھیرے میں کیوں لیٹے ہو؟ امی، میرے لیے اب کیا اندھیرا کیا اجالا، دونوں ایک ہی ہیں۔ تم مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو، صابرہ نے بڑی محبت سے کہا۔ پھر کس سے کروں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ پریشان ہو کر بولا۔ اسی لیے کہتی ہوں شادی کر لو۔ امی مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرے، اکبر نے ناراضگی سے کہا۔ اچھا اٹھو، تمہارے ابو بلائے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ گھر میں اتنی لمبی رقم پڑی ہے، تمہارے ابو کہتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ رقم؟ کیسی رقم؟ اکبر نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ بھول گئے؟ صابرہ نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی اور پھر واپس آ کر اکبر کے نزدیک بیٹھ گئی۔ اکبر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ارے تمہیں وہ رقم یاد نہیں؟ وہ 25 لاکھ؟ اچھا، مجھے یاد آ گیا۔ اکبر نے صابرہ کو آگے نہ بولنے دیا۔ امی، ان روپوں کو آگ کیوں نہیں لگا دیتی؟ تم اس معاملے میں اپنے ابو سے ہی بات کرو۔ کہاں ہیں وہ پیسے؟ سوٹ کیس میں ہیں، اور سوٹ کیس پیٹی میں پڑا ہے اور اس کے اوپر لحاف اور گدے رکھے ہوئے ہیں، صابرہ نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہاتھ منہ دھو کر آتا ہوں، آپ اس رقم کا حساب کتاب کریں۔ یہ کہہ کر اکبر باتھ روم میں چلا گیا۔ باتھ روم میں داخل ہو کر جب اس نے دروازہ بند کیا تو حسب معمول اس کی نظر نیلم کی لکھائی پر پڑی۔ اکبر، میں تمہاری ہوں، مجھے بھول نہ جانا۔ یہ تحریر روز بروز دھندلاتی جا رہی تھی۔ اس تحریر پر اکبر کی جب بھی نظر پڑتی اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ اکبر کو نیلم کو اس گھر سے گئے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے اور اس کے لیے اب تک وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ یہ بات طے تھی کہ نیلم جہاں بھی تھی اس مکان میں تھی جو درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہ مکان دونوں ہی نے دیکھا تھا، درغام نے بھی اور دادا غفور نے بھی۔ دونوں ہی اس مکان کے محل وقوع کو تلاش کرنے کی کوشش میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ نہ جانے نیلم کس حال میں ہوگی، اس پر کیا بیت رہی ہوگی، وہ جن اس پر جانے کیسے کیسے ظلم توڑ رہا ہوگا۔ وہ نازک سی نیلم یہ سب کچھ کہاں برداشت کرے گی؟ بالآخر ایک دن موت سے ہمکنار ہو ہی جائے گی۔ نہیں نہیں، اس کا وجود شدت سے چیخ اٹھا۔ نیلم میری ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ مجھے مل کر رہے گی، میں اسے ڈھونڈ ہی لوں گا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ کمرے سے باہر آیا تو ٹی وی لاؤنج میں بابر اس کا منتظر تھا۔ بابر دیکھتے ہی اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ ادھر آ جاؤ اکبر۔ جی ابو۔ اکبر بابر کے برابر بیٹھ گیا۔ راجدہ، ذرا ٹی وی بند کر دو، بابر علی نے راجدہ سے کہا۔ راجدہ نے جلدی سے ٹی وی بند کیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 25 لاکھ روپے جو گھر میں رکھے ہیں، ان کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بابر نے بات شروع کی۔ ابو، آپ نے کیا سوچا ہے؟ اکبر نے پلٹ کر سوال کیا۔ اتنی بڑی رقم بے مصرف پڑی ہے، ہمیں چاہیے اسے کاروبار میں لگائیں۔ نہیں ابو، اس رقم پر ہمارا کوئی حق نہیں، وہ حرام کی کمائی ہے، میرے خیال میں اسے نظر آتش کر دینا چاہیے۔ اکبر نے 2 ٹوک فیصلہ دیا۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو۔ پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ جو مناسب سمجھیں کر لیں۔ یہ کہہ کر اکبر اٹھنے لگا۔ اچھا، زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں، تم ذرا اپنی پیٹی سے وہ سوٹ کیس نکال کر لاؤ۔ جی بہتر، اکبر نے بڑی سعادت مندی سے کہا۔ پھر اٹھ کر اسٹور میں گیا۔ راجدہ اس کے ساتھ تھی۔ دونوں نے مل کر پیٹی کے اوپر پڑا سامان ہٹایا اور پھر پیٹی میں سے لحاف گدے نکالے۔ سوٹ کیس سب سے نیچے تھا۔ اکبر نے جھک کر پیٹی سے اسے نکالا اور ٹی وی لاؤنج میں لے آیا۔ وہ سوٹ کیس اس نے نیچے قالین پر رکھا۔ بابر علی صوفے سے نیچے اتر آیا اور قالین پر پاؤں پھیلا کر بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس کی چابی تھی
उसने सूटकेस के ताले में चाबी घुमाई और ताला खुल गया। अकबर, रायता और साबरा सबके सब सूटकेस को घेरे खड़े थे। बाबर अली ने बड़े प्यार से सूटकेस का ढक्कन उठाया। फिर जैसे उसकी नजर सूटकेस के अंदर पड़ी, उसके छक्के छूट गए। वो कूदकर सोफे पर चढ़ गया। रायता और साबरा की चीखें बुलंद हुईं और वो दरवाजे की तरफ सरपट भागी। अकबर भी सूटकेस के पास खड़ा रह न सका, जल्दी से सोफे पर चढ़ गया। सूटकेस में रकम न थी, बल्कि उसके अंदर एक कुंडली मारे सांप बैठा था। जैसे ही सूटकेस का ढक्कन खुला, उसने फनकार कर अपना फन फैलाया और सरसराता हुआ सूटकेस से बाहर आया। वो तो अच्छा हुआ इस सांप का रुख सोफों की तरफ नहीं था। अगर होता तो उन दोनों के पास इस वक्त कोई ऐसी चीज न थी जिससे वो उस सांप का मुकाबला करते, बल्कि उस सांप का रुख दरवाजे की तरफ था। साबरा और रायता इसके फन उठाते ही भाग खड़ी हुई थी और उन्होंने अपने कमरे में जाकर ही दरवाजा बंद कर लिया था। वो सांप सरसराता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। सांप के कमरे से निकलने के बाद अकबर स्टोर से अपनी हॉकी निकाल लाया और सांप के पीछे भागा। फिर उसने पूरा घर छान मारा। घर के आगे पीछे पौधों में भी देख लिया, लेकिन इस सांप का कहीं पता न चला। घर में कई दिन उस सांप की दहशत छाई रही। चलते फिरते, उठते बैठते बस यही गुमान होता, सांप अब यहाँ से निकला कि वहां से निकला। खास तौर से रायता और साबरा की बुरी हालत रही। रात को उन्होंने अकबर को अपने कमरे में सुलाया। ख्वाब में भी इस सांप ने पीछा न छोड़ा। कभी वो खिड़की से अंदर आता दिखाई देता, तो कभी जिस्म पर रेंगता हुआ महसूस होता। मामू फुरकान को मालूम हुआ तो वो कहीं से एक सपेरा पकड़ लाए। उसने घर के लॉन में बैठकर 2-2.5 घंटे तक बीन बजाई। वो बेचारा बीन बजा बजा कर थक गया, लेकिन कहीं से सांप बरामद ना हुआ। घर में सांप होता तो बरामद होता। तब कहीं जाकर साबरा और रायता के दिल को इत्मीनान हुआ और उन्होंने बात बात पर सांप से डरना छोड़ा। बाबर अली को रकम के इस तरह निकल जाने पर बड़ा सदमा था। वो अपने दिल में जाने क्या क्या मंसूबे बनाए बैठा था, जो उसके दिमाग से लहराते हुए निकल गए। कितना अच्छा होता कि वो इस रकम को फौरी ही इस्तेमाल में ले आता। आज ये दिन न देखना पड़ता। जबकि अकबर सूटकेस से रकम गायब होने पर खुश था। वो पहले ही दिन से इस रकम का मुखालिफ था। वो चाहता था उसे फौरन ही नजरे आतिश कर दिया जाए। बिला आखिर उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अगरचे रकम को नजरे आतिश करने की नौबत ना आई, लेकिन वो खुद ब खुद गायब तो हो ही गई। अकबर की अब अजीब हालत हो गई थी। वो घर से शोरूम जाता और वहां से आकर अपने कमरे में बंद हो जाता। वो घंटों नीलम की तस्वीर को तके जाता या बाथरूम में खड़े होकर नीलम की तहरीर को देखे जाता। साबरा से बेटे की हालत ना छुपी थी। वो इस तरह बेड पर लेटे नीलम की तस्वीर को तकते हुए उसे देखती तो दिल कट कर रह जाता। इसका जी चाहता नीलम की इस तस्वीर को कमरे से निकाल कर फेंक दे। वो जानती थी कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए उसने कभी ऐसा कदम न उठाया। एक रात अकबर ने नीलम को ख्वाब में देखा। उसने देखा नीलम घर के दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही है। जिन ने उसे खुद ब खुद आज़ाद कर दिया है, क्योंकि अब नीलम उसके मतलब की ना रही थी। वो शदीद बीमार हो गई थी। अकबर नीलम को अपने घर के दरवाजे पर पाकर फूला ना समाया। जब वो गाड़ी से उतरकर उसके नजदीक आया तो नीलम देखते ही देखते हवा में तहलील हो गई। इस ख्वाब के बारे में वो सारा दिन सोचता रहा। दिन भर नीलम उसकी नज़रों में रही, इसके ख्वाबों में छाई रही। वो ख्याल में इससे हम कलाम होता रहा। शाम को जब वो शोरूम से वापस आया और गाड़ी खड़ी करके अपने कमरे में पहुंचा तो इसने वहां किसी को पाया। वो लड़की नीलम की तस्वीर के सामने खड़ी थी और तस्वीर को महवत से देख रही थी। अकबर की तरफ उसकी पुश्त थी। उसके लंबे बाल नीचे घुटनों तक गए हुए थे। खूबसूरत पुरकशिश जुल्फे, पतली कमर, सडोल जिस्म। कौन है आप? अकबर ने पूछा। तब जवाब में उसने गर्दन घुमाई और मुस्कुराकर देखा। अरे नीलम, तुम? ये कहकर अकबर बेकरारी से उसकी तरफ बढ़ा। नीलम को रूबरू पाकर अकबर की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे दिल हलक के रास्ते बाहर आ जाएगा। इसका रुआं रुआं खुशी से झूम उठा। चेहरे पे शादाबी आई, आंखें चमकी, होठों पर फूल खिले। इसका मतलब था उसने जो ख्वाब देखा था वो सच्चा था।
नीलम खुद ब खुद घर आ गई थी। उसे जिन ने आज़ाद कर दिया था। वो उससे 6-7 कदम के फासले पर थी। मगरिब का वक्त था। कमरे में मलगजा सा अंधेरा था। अकबर बाहें फैलाए नीलम की तरफ बेकरारी से बढ़ा और अभी 2-3 कदम ही आगे बढ़ा था कि एकदम रुक गया। उसे कमरे में पाकर उसने अपना पूरा चेहरा अकबर की तरफ घुमाया। जब वो मुकम्मल तौर पर घूमकर सामने आई तो अकबर को ठिठुक जाना पड़ा। वो नीलम ना थी, नीलम का साया थी, परतू थी, नकल थी। अरे आप तो सचमुच धोखा खा गए। वो खिलखिलाकर हंसी। आंटी ने ठीक ही कहा था। अकबर ने आगे बढ़कर लाइट जलाई। रोशनी में अकबर ने गौर से उस लड़की को देखा तो वो नीलम से बड़ी हद तक मुशाबह थी, लेकिन वो नकल बामुताबिक असल न थी। उसकी आंखें नीलम जैसी न थीं। नाक और होंठ की बनावट में भी फर्क था। चेहरे की रंगत और आवाज़ भी वैसी न थी। अलबत्ता उसकी जुल्फें नीलम जैसी ज़रूर थीं। आदमी एक मर्तबा देखे तो बस देखता ही चला जाए। पहली नज़र में वो नीलम लगती भी थी, मगर दूसरी नज़र सारा भरम खोल देती थी। अब ये बात तो साफ हो गई थी कि वो नीलम न थी। नीलम न थी तो वो उसके बेडरूम में किस तरह आ गई? उसे यहाँ तक किसने भेजा और वो कौन थी, कहाँ से आई थी? अकबर ने इससे पहले इस लड़की को कभी नहीं देखा था। वो रिश्ते की तमाम लड़कियों से वाकिफ था। ताबरा और बाबर के दोस्तों की लड़कियों को भी उसने देखा हुआ था और राजता की सहेलियों को भी जानता था। ये लड़की बिल्कुल नई थी, अजनबी थी। और कहाँ से आई थी? लड़की अकबर के तजब्बुब को भाप गई। पहले तो खिलखिला कर हंसी, फिर एक अदा से अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकने की कोशिश की। मैं आपके पड़ोस से आई हूँ। मेरा नाम सीमा शेख है। वो बेहिजाबाना बोली। आप आफ्ताब शेख साहब के यहाँ से आई हैं? अकबर ने पूछा। हाँ। वो मुस्कुराई। लेकिन इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। अकबर ने संजीदगी से कहा। आप देखते कैसे? मैं यहाँ रही कब हूँ? मैं पहली मर्तबा कराची आई हूँ, उसने बताया। ओह! अकबर ने हैरत जाहिर की। कहाँ से? मरीख से। सीमा ने हंसकर कहा। जी, क्या फरमाया? अकबर ने संजीदगी से पूछा। ऊंचा सुनते हैं क्या आप? मैं मरीख से आई हूँ। अब अकबर को अंदाजा हुआ कि वो मजाक के मूड में है, इसलिए उसने सोचा खामोशी बेहतर है। इसने कोई जवाब न दिया और यूं ही दरवाजे की तरफ देखने लगा। चली जाऊं? सीमा ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर बोली। यही मतलब है ना आपका? जी। मैंने ये तो नहीं कहा, अकबर ने कहा। फिर खामोश नजरों से दरवाजे की तरफ क्यों देखा? अब अकबर को एहसास हुआ, ये लड़की मान न मान मैं तेरा मेहमान किस्म की चीज़ है। इसके साथ दो टोक रवैया अख्तियार करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रास्ता, अकबर ने जोर से आवाज़ दी। मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, किसी को बुलाने की क्या ज़रूरत है? ये कहकर सीमा शेख ने टाटा के अंदाज में हाथ हिलाया और मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। अभी वो दरवाजे पर पहुंची थी कि रास्ता आ गई। राइजा को देखकर सीमा पलट आई और बड़ी बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। सीमा, अकबर भाई से मिली तुम? उसने सीमा से पूछा। बहुत बोर भाई हैं तुम्हारे। अरे ऐसा ना कहो। राइजा ने अकबर की हिमायत की। तुम्हारे भाई ने मुझे कमरे से निकाल दिया, उसने बन कर कहा। झूठ, बिल्कुल झूठ, अकबर ने जल्दी से कहा। फिर आपने बैठने को भी नहीं कहा, उसने दलील दी। मैं तो आपको अकबर ने कमरे में देखकर हैरान रह गया था, अकबर ने बताया। साफ क्यों नहीं कहते, मुझे नीलम कहकर भी पुकारा था। सीमा शेख खिलखिलाकर हंसी और उसे शर्मिंदा करने पर तुली हुई थी। अकबर की समझ में न आया ये किस किस्म की लड़की है। इसका तन्हा बेडरूम में चले आना, बेतकल्लुफाना गुफ्तगू जैसे बरसों की शनासाई हो, राजा के कंधे पर हाथ रखकर बेतकल्लुफाना अंदाज में खड़े होना, ये सब बातें जाहिर कर रही थी कि इस लड़की की फितरत में बेबाकी और जल्द घुल मिल जाने की आदत है। अकबर ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया तो राजा से मुखातिब हुई। अच्छा रशी, हम चलते हैं, रात को आएंगे। किसी अच्छी फिल्म का कैसेट मंगवा कर रखना। ठीक है। मेरी अम्मी कहाँ हैं? उसने पूछा। मेरी अम्मी के पास ड्राइंग रूम में है, राजा ने कहा। अच्छा अकबर साहब, अल्लाह हाफिज, रात को मुलाकात होगी, सीमा ने बड़ी ही बेतकल्लुफी से कहा और बल खाती चली गई। राइता भी इसके साथ साथ जाने के लिए मुड़ने लगी तो अकबर ने उसे आवाज़ दी। राइता,
अकबर भाई अभी आई, ये कहकर वो सीमा के साथ ही चल पड़ी। अकबर ने अंदाजा कर लिया कि राइदा उसे गेट तक रुखसत करने गई है। इतनी देर में अकबर ने अपने कपड़े तब्दील कर लिए और मुंह धोकर बाथरूम में घुस गया। राइदा वापस आई। जी जनाब। राइदा के होंठों पर दबी मुस्कुराहट थी। ये क्या चीज थी? अकबर ने पूछा। चीज नहीं, वो सीमा शेख है। ये मेरे कमरे में कैसे आ गई? अकबर ने वजाहत चाहिए। मैं लाई थी नीलम भाभी की तस्वीर दिखाने, राइदा ने बताया। लेकिन जब मैं कमरे में आया तो वो अकेली थी। मैं आपकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर गेट खोलने गई। गेट खोलकर वापस आ रही थी तो अम्मी ने आवाज़ दी। अभी उनकी बात सुन रही तो आपने आवाज़ दी। अच्छा, ये बात तो मेरी समझ में आ गई कि वो मेरे कमरे में कैसे आई, लेकिन ये थी कौन? आपको कैसी लगी? सवाल कुछ, जवाब कुछ। इंतहाई बकवास। अकबर ने अपनी राय दी। बिल्कुल नीलम भाभी जैसी लगती है, राइदा ने हंसकर कहा। नीलम जैसी तो ना कहो, अलबत्ता नीलम की भौंडी नकल ज़रूर है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। खैर, अब ऐसा भी ना कहें। रात को अम्मी को वो बहुत पसंद आई है। अच्छा, तो ये अम्मी की दरियाफ्त है। वैसे वो क्या करेंगी इसका? अकबर ने पूछा। अचार डालेंगी और आपको खिलाएंगी, राइदा ने जलकर कहा। इसमें नाराज होने की क्या बात है? अकबर अब थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। फिर आप इसको क्यों बुरा कह रहे हैं? अच्छा भाई, वो तो बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल चांद जैसी। अभी जाकर उसके लिए कोई अच्छी सी फिल्म ले आइएगा, वो रात को आएगी। जहन्नुम में गई वो और साथ में तुम भी। ये कहकर अकबर बाथरूम में घुसा और धड़ से दरवाज़ा बंद किया। राइदा चंदा में बंद दरवाजे को देखती रही, फिर मुस्कुराती हुई कमरे से निकल आई। अकबर ने ठीक अंदाजा लगाया, वो वाकई साबरा की दरियाफ्त थी। आफ्ताब शेख का मकान उनके घर से 2-3 मकान छोड़कर था। आफ्ताब शेख की बीवी साबरा की भी दूर दूर से सलाम दुआ थी। रात को सड़क पर टहलते हुए अक्सर उनकी मुलाकात आफ्ताब साहब की बेगम से हो ही जाती थी। ये 2-3 दिन पहले की बात थी। साबरा ने गाड़ी से उतरते हुए सीमा शेख को देखा तो वो ठुठक कर रुक गई। एक लम्हे को तो यही लगा कि नीलम है। राइदा उसके साथ थी। वो दोनों ऐसे ही टहलती हुई आगे निकल आईं। सीमा को देखकर राइदा भी शशंदर रह गई। जब सीमा शेख अपनी माँ के साथ अंदर मकान में चली गई तो वो दोनों माँ बेटियां भी इनके पीछे पीछे लपकी। बेगम आफ्ताब ने इन दोनों का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, क्योंकि ये पहला मौका था कि इनके घर वो आई थी, वरना अब तक दूर से ही सलाम दुआ होती रहती थी। जब बेगम आफ्ताब को मालूम हुआ कि वो उनकी भांजी के ताक़ुब में अंदर आई हैं तो उसे बड़ी हैरत हुई। फिर जब बेगम आफ्ताब को मालूम हुआ कि वो उनकी बहू की हूबहू नकल है तो उन्हें मज़ीद हैरत हुई। साबरा ने बातों बातों में जल्दी जल्दी सीमा शेख के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर ली। सबसे अहम इत्तला तो उनके लिए यही थी कि वो अभी तक किसी की नहीं हुई थी। ये इत्तला इसके लिए बहुत कीमती थी। साबरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे गैब से उसकी मदद हुई हो। अल्लाह ने अकबर के लिए दूसरी नीलम भेज दी हो। सीमा को देखकर वो बेपनाह खुश हुई, लेकिन ये मामला इतना आसान न था। साबरा जो कुछ सोच रही थी, अगरचे वो अपनी सोच में मुखलिस थी और अपने बेटे को जलते जहन्नुम से निकालना चाहती थी, फिर भी सब कुछ आनन फानन हो जाने वाला ना था। इसके लिए थोड़े सब्र और मंसूबाबंदी की ज़रूरत थी। सबसे पहले तो किसी तरह अकबर को सीमा की तरफ मुल्तफ करना था। ये भी अच्छा था कि सीमा शर्मीले मिजाज की लड़की न थी। वो बड़ी साफ को और बोल्ड शगुफ्ता मिजाज लड़की थी। बात बेबात कह के लगाना उसका शेवा था। इतने पहले मरहले पर साबरा ने तय किया कि दोनों की मुलाकात करा दी जाए। सीमा को नीलम के बारे में बस इतना बताया कि वो अकबर की बीवी है, आजकल अपने मैके लाहौर गई हुई है। सीमा को जब ये मालूम हुआ कि वो नीलम से बहुत मुशाबा है तो फितरी तौर पर इसके अंदर तजस्सुस जागा। वैसे भी वो मुहिम पसंद लड़की थी। वो फौरन अकबर के घर आ गई। फिर राइदा ने साबरा की हिदायत पर सीमा के साथ एक शरारती मंसूबा बनाया। सीमा शेख को ऐसी शरारतों में बड़ा मज़ा आता था। वो बिला झिझक राजी हो गई और यूं वो अकबर के घर में दाखिल होने से पहले इसके कमरे में पहुंची। जब साबरा ने सीमा को नीलम के बारे में बताया तो इसने बड़े जोश से ये कहा, तुम्हारी शक्ल नीलम से इस कदर मिलती है कि अगर तुम्हें तक आ जाएगा हम जैसे भी तुम्हें देखकर रुक गए थे। और हुआ भी यही। अकबर वाकई उसे अपने बेडरूम में देखकर धोखा खा गया था, लेकिन बस चंद लम्हों के लिए।
कि वो जो उसकी तरफ पुश किए खड़ी थी। जब वो घूम कर उसकी तरफ सामने से आई तो हीरे और पत्थर में फर्क साफ महसूस कर लिया अकबर ने। अकबर का ख्याल था सीमा ऐसे ही मजाक में रात को आने का कह गई है, वो भला कैसे आएगी। लेकिन उस वक्त उसे हैरत हुई जब वो रात 9 बजे उनके घर आ धमकी। इस मर्तबा उसकी अम्मी भी साथ न थी। ये लोग खाने में मसरूफ थे। सीमा अगरचा खाना खा कर आई थी, लेकिन रायजा ने हाथ पकड़कर उसे खाने की मेज़ पर बिठा लिया और वो खाने की मेज़ पर बैठी तो उसने ये एहसास ना होने दिया कि वो खाना खाकर घर से निकली थी। उसने दोबारा शर्मसार होकर खाना खाया। अकबर बेचारा उसका मुंह ही देखता रह गया। खाना खाने के बाद सीमा ने कैसेट का पूछा, कोई फिल्म मंगाई? रायदा ने कोई जवाब देने के बजाय अकबर को देखा। अकबर अभी कोई जवाब देने का सोच ही रहा था कि सीमा खट से बोली, आओ रायदा, हम खुद जाकर फिल्म ले आते हैं, नजदीक ही तो है दुकान। नहीं, आप ना जाएं, दुकान पर मैं जाकर ले आता हूँ। कौन सी फिल्म देखनी है आपको? कोई अच्छी सी इंग्लिश फिल्म, सीमा ने बड़े इत्मीनान से कहा। सीमा, अमिताभ की अभी नई फिल्म आई है, वो देख लेते हैं। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। सीमा ने फौरन उसकी बात मान ली और फिर धीरे से रायचा के कान में कुछ कहा। सीमा की बात सुनकर रायचा ने सर हिलाया। अच्छा, ठीक है। अब क्या हुआ? अकबर ने रायचा को घूर कर देखा। हम लोग भी आपके साथ चलेंगे, बहुत दिन से आपने आइसक्रीम नहीं खिलाई है। चलो बाबा, चलो, अकबर ने उठते हुए कहा, लेकिन पैदल जाना होगा। नहीं अकबर भाई, हम पैदल नहीं जाएंगे, गाड़ी में, रायदा ने कहा। मजबूरन अकबर को गाड़ी निकालना पड़ी। पहले इन लोगों ने वीडियो शॉप से अपनी पसंद की कैसेट ली, फिर ये लोग एक कोल्ड स्पॉट पर पहुंचे। वहां आइसक्रीम खाने के बजाय कुल्फी खाई और ठंडी बोतल के मजे लिए। सीमा और रायदा गाड़ी की पिछली सीट पर थी। सीमा इस्लामाबाद से आई थी, वो इस्लामाबाद का जिक्र कर रही थी और रायदा अपने शहर की तारीफों में लगी हुई थी। अकबर खामोशी से दोनों की दिलचस्प नोक झोंक सुन रहा था। अरे साहब, आप भी कुछ बोल लीजिए, अचानक सीमा ने उसे टोका। मैं क्या बोलूं? अकबर ने पलट कर देखे बगैर कहा। कोई अच्छा सा शेर सुनाए। उधर से फरमाइश हुई। शायरी से मुझे कभी दिलचस्पी नहीं रही, वो दो टोक जवाब दिया। और रायदा तुम्हें? सीमा ने रायदा की तरफ पलट कर कहा। मुझे तो है, रायदा ने हंस कर कहा। आओ फिर बैतबाजी हो जाए। सीमा ने खुश होकर कहा। अरे भाई, जल्दी से बोतलें ख़त्म करें तो और चलें, ये बैतबाजी घर जाकर कर लेना। बोर आदमी, सीमा ने अगरचा आहिस्ता से कहा था, लेकिन अकबर ने फिर भी सुन लिया। वो खामोश रहा और क्या करता, इस मुंह फुट लड़की के मुंह लगना बेकार था। घर जाकर फिल्म देखी। कुछ देर साबरा और बाबर ने वो फिल्म देखी, फिर नींद का बहाना करके उठ गए। 1 घंटे के बाद अकबर को भी जमाइयाँ आने लगी। फिल्म ऐसी कोई ख़ास ना थी। वो उठकर अपने कमरे में जाने लगा तो सीमा शेख ने उसे रोक लिया। ये क्या बात हुई भला? हम अकेले फिल्म देखेंगे क्या? मजबूरन उसे बैठना पड़ा। वो जमाइयों पर जमाइयाँ लेता रहा और फिल्म देखता रहा। फिल्म ख़त्म होने के बाद उसे सीमा को उसके घर तक छोड़कर भी आना पड़ा। रास्ते में फिल्म पर तबसरा करते करते अचानक उसने पटरी बदली और एक गैर मुतवक्का सवाल अकबर से कर डाला। आपकी बेगम कब आएंगी? मालूम नहीं, अकबर ने स्पाट लहजे में कहा। लड़कर गई हैं क्या? वो खिलखिलाकर हंसी। यही समझ लें भाई, आपकी शादी को कितने दिन हुए हैं, अभी से लड़ाइयाँ शुरू भी कर दी। लड़ाई का क्या है, लड़ाई तो पहले दिन ही शुरू हो जाती है। ये शादी आपकी पसंद की थी, सारे सवालात आज ही कर लेंगी, फिर कभी से ही, अब आपका घर आ गया है, अकबर ने जवाब दिया। मुझे फिल्म दिखाने, कुल्फी खिलाने और घर तक पहुंचाने का बहुत बहुत शुक्रिया, सीमा ने बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा। अकबर ने इस बात का कोई जवाब न दिया, वो महज मुस्कुराकर रह गया। सीमा के घर के लोग भी अभी तक जाग रहे थे। घंटी बजाते ही गेट खुला और अकबर को बाय बाय करते वो अंदर चली गई। गेट पर आने वाली उसकी अम्मी थी। अकबर नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि सीमा की शक्ल फिर दिखाई दे गई। वो फौरन नाश्ते की मेज से उठकर और सीमा को सरसरी सा हेलो कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। अभी वो कपड़े बदल कर आईने के सामने खड़ा
बाल संवार रहा था कि दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अकबर को इसमें से सीमा के कपड़ों की झलक दिखाई दे गई। इससे पहले कि अकबर उसे कमरे में आने की इजाज़त देता, वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। ओह, कहाँ की तैयारी है। वो आते ही बेतकल्लुफ़ी से बेड पर बैठी। शोरूम जा रहा हूँ, अकबर ने सादगी से कहा। क्या आप गाड़ियों का कारोबार करते हैं? जी नहीं, हम, अकबर ने जवाब दिया। क्या क्या बनाते हैं? सीमा ने हंसकर पूछा। बस एक बेवकूफ़ नहीं बनाते, बाकी सब बनाते हैं। ये आपने मुझ पर छींटा मारा है। आपका क्या ख्याल है, मैं आपको बेवकूफ़ बना रही हूँ? मैं भला आपको क्यों बेवकूफ़ बनाऊंगी? वो गुस्से से बोली। मैंने आपसे ऐसी कोई बात नहीं कही, मैंने महज मजाक में एक बात कही है। मैं जानती हूँ सब। ये राइता कहाँ है? वो मेरे लिए चाय बनाकर ला रही है। तब तक मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ। मुझसे? अकबर ने हैरत से अपने सीने पर उंगली रखी। मुझसे क्या बात करनी है भला? हम आज आपको शोरूम नहीं जाने देंगे, हमें समंदर पे लेकर चलें। और फिर राइता और सीमा ने वाकई अब उसे शोरूम न जाने दिया। वो उसे लेकर समंदर पर चली गई। समंदर पर जाकर सीमा ने खूब इंजॉय किया। अगरचे वो पहली मर्तबा कराची आई थी और इसने पहली मर्तबा समंदर देखा था, लेकिन वो समंदर से दहशत अदा न थी। हॉक्स बे के साहिल पर बेशुमार लोग मौजूद थे, लड़के लड़कियां, मर्द औरतें, सभी बच्चे समंदर की लहरों से खेल रहे थे। पहले तो दूर से समंदर का नज़ारा करती रही वो, फिर राइता ने उसका हाथ पकड़ा और हट की सीढ़ियां उतरते हुए बोली, आओ समंदर में चलें। हाय, डर लगता है। डर कैसा? मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। सच बड़ा ही मज़ा आता है नहाने में। फिर राइता ने समंदर से उसका तारुफ कराया। जब पानी उसके पाँव को छूता हुआ 2-3 बार गुजर गया तो वो फिर से उसे लेकर आगे बढ़ी। थोड़ी देर में सीमा का सारा डर जाता रहा और वो समंदर से अपनी आदत के मुताबिक बेतकल्लुफ़ हो गई। अब वो बैठकर समंदर की लहरों से खेल रही थी। जब पानी की लहर उसकी तरफ आती तो वो खूब शोर मचाती, खूब इंजॉय करती। सीमा को समंदर में देखकर अकबर को नीलम बे-इख्तियार ही याद आ गई। फिर उसे नीलम का हाथ पकड़कर समंदर में भागना याद आया और एक बड़ी लहर वो उसे अपने साथ जो बहाकर ले गई। ये सिर्फ नीलम को समंदर में ढूंढते रहे जबकि वो हट में बैठी हुई थी। फिर अकबर को इस जिंदे नीलम के हाथ पकड़ने पर माफ़ी मांगना भी याद आया। अपनी बीवी का हाथ पकड़ने पर एक गैर से माफ़ी कैसी दिल जलाने वाली बात थी। ये आप हर वक्त रूठे रूठे क्यों रहते हैं? अकबर एकदम चौंक उठा। इसके सामने सीमा खड़ी थी। वो अभी समंदर से बाहर निकल कर आई थी। इसके कपड़े भीगे हुए थे और जिस्म से चिपके हुए थे। अकबर ने एक सरसरी नज़र उस पर डाली और बोला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। इतनी देर में रास्ता भी करीब आ गई। फिर दोनों ने एक एक हाथ उसका थाम लिया और रेत से उठाते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है तो फिर आइए हमारे साथ समंदर में। फिर वो दोनों उसका हाथ पकड़े तकरीबन दौड़ती हुई समंदर में ले गईं। समंदर में जाते हुए ही जाने के ख्याल ने उसे तड़पाया कि एक झटके से उसने अपने दोनों हाथ छुड़ाए और किनारे की तरफ भागा। वो किनारे पर भी नहीं रुका, सीधा हट की सीढ़ियाँ चढ़ता हट में आया और ज़मीन पर बिछी हुई दरी पर बैठ गया। इसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसने अपना सर घुटनों के दरमियान दबा लिया और हाथों को घुटनों के गिर्द लपेट लिया। कपड़ों की तरह उसकी आंखें भी पानी से भर गईं और वो सिसक कर रो दिया। उसे बेइख्तियार नीलम याद आ गई। वो उसकी याद में तड़प उठा। सीमा ने अकबर का हाथ इस बार छुड़ाकर भागते देखा तो राइता से पूछा, इन्हें क्या हुआ? पता नहीं, राइता ने जवाब दिया। ये हट में क्या करने गए हैं? सीमा ने फिर सवाल किया। कुछ नहीं कह सकती, राइता बोली। आओ चलकर देखें। क्या पता अंदर से कुछ खाने पीने की चीज़ लेने गए हों। अभी थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, फिर चलेंगे, राइता ने कहा। राइता को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा था कि वो हाथ छुड़ाकर क्यों भागा है। कुछ इसी तरह का मंजर था जब नीलम समंदर में गायब हुई थी। उस वक्त ज़रूर अकबर भाई को नीलम याद आ गई होगी और वो ज़रूर उसकी याद में अंदर बैठे आंसू बहा रहे होंगे।
کچھ دیر انتظار کے بعد وہ جب دونوں اندر پہنچی تو اکبر کے دل کا غبار نکل چکا تھا. دل پر جو گھٹا چھائی تھی وہ برس چکی تھی. وہ ان دونوں کو سینیاں چاہتا دیکھ کر سنبھل کر بیٹھ گیا اور مسکرانے کی بھی کوشش کرنے لگا. ہمیں سمندر میں اکیلا چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ سیما نے شکایتاً کہا. سیما، یہ یہاں بیٹھے ضرور کچھ کھا رہے ہوں گے. راجدہ نے لائن دی. نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا. دیکھنے ساری چیزیں جوں کی توں بند ہیں. پھر ادھر بھاگ کر کیوں آئے تھے؟ سیما نے پریشان ہو کر پوچھا. اکبر بھائی، کچھ کھانے پینے کی چیزیں نکالیں، بہت بھوک لگی ہے. راجدہ نے ٹالنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی. اکبر کھانے پینے کی اشیاء سے پر تھیلا کھولے سیما اور راجدہ کے سامنے کھانا لگانے لگا. کچھ دیر بعد اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اکبر انہیں سمندر میں چھوڑ کر ہٹ میں کیوں آیا. دوپہر کا کھانا کھا کر وہ لوگ واپس چل پڑے. گھر پہنچ کر اکبر نہایا دھویا اور چائے پی کر سو گیا. ابھی سوئے ہوئے اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ کسی کھٹکے پر اس کی آواز کھلی. اس نے دروازے کی طرف دیکھا. دروازہ بند تھا. دروازہ اندر سے بند کر کے ہی لیٹا تھا وہ. پھر اس کی نظر باتھ روم کے دروازے پر گئی تو چونک اٹھا. باتھ روم کا دروازہ کسی نے زور سے کھولا تھا. اتنے زور سے کہ وہ دیوار کے ساتھ جا لگا تھا. دروازے کی آواز سے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی. دروازے پر نیلم کھڑی تھی. وہ اسے دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھا. نیلم، تم؟ ہاں میں. کمرے میں آ گئی وہ. سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھ گئی. اکبر اٹھ کے اس کے نزدیک گیا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو وہ غصے سے ایک دم کھڑی ہو گئی اور بولی. خوب رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں. نیلم، یہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ اب آپ کو میری کیا فکر ہوگی؟ آپ کو دوسری نیلم جو مل گئی. وہ تیکھے لہجے میں بولی. کیا بات کرتی ہو؟ وہ دوسری نیلم ہے؟ وہ تو تمہارے پاؤں کی دھول بھی نہیں. فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، قلفی کھائی جا رہی ہے، سمندر کی سیریں بھی ہو رہی ہیں، خوب ہی مذاق ہو رہا ہے. مجھے تو تم بھول ہی گئے ہو. میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں تو تمہیں مر کر بھی نہیں بھول سکتا. پھر مجھے ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ میں کہاں ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں؟ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. میں تو پھر انسان ہوں. کچھ بتاؤ تو صحیح، تم کہاں ہو؟ کہاں چھپ گئی ہو؟ اکبر، میرے چاروں طرف آگ ہے. میں مری جا رہی ہوں. خدا کے واسطے مجھے ڈھونڈو. اکبر کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ ایک خوفناک آواز کمرے میں گونجی. میں آؤں. اکبر نے پلٹ کر دیکھا تو بیڈ پر کالے بلے کو پایا. کالے بلے کو دیکھ کر نیلم باتھ روم کی طرف بھاگی. کالے بلے نے بھی بیڈ سے چھلانگ لگائی اور باتھ روم میں داخل ہو گیا. باتھ روم کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا. تبھی اکبر کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو معلوم ہوا وہ ابھی تک خواب دیکھ رہا تھا اور پسینے میں نہایا ہوا تھا. اس نے اٹھ کر پنکھا تیز کیا. کچھ دیر کے بعد جب پسینہ خشک ہو گیا اور دل کی دھڑکن قابو میں آ گئی تو وہ اٹھ کر باتھ روم میں گیا تاکہ ہاتھ منہ دھو لے. دروازہ بند کر کے جب اس نے نیلم کی تحریر پر نظر ڈالی تو حیرت زدہ رہ گیا. وہ تحریر جو وقت کے ساتھ ساتھ دھندلا رہی تھی اب بالکل تازہ تھی. ایسا محسوس ہوتا تھا نیلم ابھی ابھی اس تحریر کو لکھ کر گئی ہو. وہ چکرا کر رہ گیا. نیلم کو اس نے خواب میں دیکھا تھا یا حقیقت میں وہ یہاں موجود تھی؟ اس کے پاس اس بات کا کوئی بھی جواب نہ تھا. رات کو سیما اور اس کی امی اور بیگم آفتاب کو صابرہ نے کھانے پر مدعو کر رکھا تھا. اکبر کو جب معلوم ہوا کہ سیما رات کو ادھر ہوگی تو وہ گھر سے بہانہ کر کے نکل گیا. جب سے اس نے نیلم کو خواب میں دیکھا تھا اسے قرار نہ تھا. دل پر گھبراہٹ طاری تھی. اس کا جی چاہ رہا تھا کسی طرح نیلم کی تلاش میں نکل جائے. گھر سے نکل کر سیدھا ماموں فرقان کے یہاں پہنچا. اس نے کھانا بھی وہیں کھایا اور بہت دیر تک ماموں فرقان سے باتیں کرتا رہا. پھر وہ رات کو وہاں سے لوٹا. اس کا دل مطمئن تھا. اس نے ایک فیصلہ کر ہی لیا تھا. دوسرے دن شام کو سیما اکبر کے گھر آئی تو اس کا موڈ خراب تھا. وہ اکبر سے حساب لینے آئی تھی کہ وہ رات کو کہاں غائب ہو گیا تھا جبکہ وہ لوگ اس کے گھر پر کھانے پر مدعو تھے. اکبر آ گئے شو روم سے. اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی سوال کیا. وہ تو گئے. راجدہ نے آنکھوں میں دیکھ کر کہا. گئے کہاں؟ مری. راجدہ نے کہا اور سیما کا ہاتھ پکڑ لیا. آؤ اندر، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں. مری؟ سیما کو ایک جھٹکا لگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات اس نے خود کلامی کے انداز میں کہی. وہ گمسم سی ہو گئی. راجدہ نے محسوس کیا کہ سیما پر اس خبر نے بجلی سی گرا دی ہے.
अंदर ही अंदर कोई चीज़ टूटी है शायद। एक बेनाम सी उदासी उसके चेहरे पर छा गई। सीमा ने इससे हाथ छुड़ा लिया, लेकिन राइटर ने फिर उसका हाथ पकड़ा। अब उसने महसूस किया कि सीमा का हाथ न सिर्फ ठंडा हो चुका है बल्कि कांप भी रहा है। सीमा, क्या हुआ तुम्हें? खैरियत तो है? राइटर ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? सीमा के होंठों पर फीकी मुस्कुराहट आई। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या यहाँ अकबर भाई से ही मिलने आई थी? राइटर ने सवाल किया। नहीं तो, सीमा ने जल्दी से कहा। तुमसे मिलने आई थी? फिर मुझसे मिलने बगैर क्यों जा रही हो? आओ अंदर आकर बात करते हैं। राइटर ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। राइटर, मैं फिर आ जाऊंगी, इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अभी तक तो ठीक थी। चक्कर आ रहे हैं। सीमा ने साफ कोई से काम लिया। आओ मैं तुम्हें अच्छी सी चाय बनाकर पिलाती हूँ, तुम्हारे चक्कर अभी ठीक हो जाएंगे। ये कहकर उसने सीमा के जवाब का इंतजार न किया और उसे खींचती हुई अपने साथ ले गई। अगली किस्त आखिरी घर की आखिरी किस्त होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम इख्तियार वक्त पर मिल जाएं।